Hello friends, our next topic is the relative velocity. We have studied velocity in this chapter. We have studied the velocity, what is the average velocity, what is the instantaneous velocity. So all you are familiar with the velocity. Now we will continue the topic and we will study the next topic, that is the relative velocity. Now what is this relative velocity? The velocity of one body with respect to the another body. Okay. What is the definition of the relative velocity? The velocity of one body with respect to another. Okay, generally we calculate the velocity with respect to another body. Okay, now this body may be in rest, okay, or in motion. नॉर्मली वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में ये हो सकता है कि जो दूसरी बॉडी, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन ऑल्सो। ओके, सपोज, okay, let us take an understand with an example. Suppose this car is moving, a car is moving with the velocity of 30 km per hour with this object which is at rest. ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में एक कार है या कोई व्हीकल है, वो 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। बट इफ सपोज देयर इज अनदर कार and it is velocity, it is moving with the 10 kilometer per hour. This car is moving with the 30 kilometer per hour, this car is moving with the 10 kilometer per hour. So what will be the velocity of this? Suppose this is A and this is B. So what is the velocity of A with respect to B? Is this 30 kilometer per hour or something else? And what is the velocity of B with respect to A? It will be 30 kilometer per hour, or with the it is 10 kilometer per hour or any other velocity. And if the object is moving in downward direction, opposite direction to the first body, so what will be its velocity? Okay, so when we calculate the velocity of one body with respect to the another body which is mostly in motion, then this velocity is known as the relative velocity. इसको हम बोलते हैं relative velocity। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है। ओके, बट यू हैव टू कीप रिमेंबर हियर इज द डायरेक्शन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्शन देखनी है आपको। ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट ए है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट इट्स वेलोसिटी इज बी ए। ओके, एंड अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज मूविंग बी and it is moving with the velocity vb. So what will be the relative velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to B. इसको हम लिखेंगे velocity of A with respect to B, and its formula is VA minus V। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है VA माइनस VB। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VA माइनस VB। सिमिलरली, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A? So that will be VB minus VA, VB minus VA। Okay, so velocity क्या होगी? Velocity of B with respect to A, VB minus V। Now here it looks simple, but most important thing is the direction। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्शंस को ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम कुछ साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं, जैसे आपने 10th में साइन कन्वेंशन पढ़ा था लाइट में, उसी तरह से हम यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। इस साइन कन्वेंशन को लेके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो इजीली होगा। ठीक है, अब जो डायरेक्शंस होती है, वी हैव 4 डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट, या आप इसको ले लो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ये भी आप ले सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो हम उसको उसकी वेलोसिटी को लेंगे पॉजिटिव, इट्स वेलोसिटी वी विल टेक एज पॉजिटिव। और अगर कोई ऑब्जेक्ट साउथ की तरफ जा रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी लेंगे नेगेटिव। इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, लेट अस टेक इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स वेस्ट इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट वी विल टेक एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द वेस्ट वी विल टेक एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम साइन कन्वेंशन जो है वो ध्यान में रखेंगे, और हम ये पहले ही जब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे उसके पहले ही हम डायरेक्शन देख लेंगे कि डायरेक्शन क्या आएगी। ओके, और हम उसको प्लस माइनस लेके उसकी वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, VA माइनस VB और VB माइनस VA। ओके, सो दिस इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। Now we will solve one numerical that is given in your book on page number 52. आप 52 पे पेज नंबर पे देखिए, टू रेल पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ एंड साउथ। ट्रेन ए मूव्स विद नॉर्थ टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो VA है, ट्रेन ए है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ के लिए अपन पॉजिटिव ले रहे हैं। एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी जो है वो साउथ की तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लेंगे माइनस, क्योंकि किधर जा रही है, साउथ की तरफ। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपके तीन पार्ट है इसमें। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी क्या होगी ए के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। एंड थर्ड वन इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ अ मंकी running on the roof of a train A against its motion with the velocity of 18 km per hour with respect to the train A observed by the man standing on the ground. Okay, so third portion अपन करेंगे। पहले अपन निकाल लेते हैं A and B. Okay, so सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको velocity of A with respect to B निकालते हैं। तो first portion velocity of A with respect to B, तो फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, VA minus B। ओके, so that will be equal to VA। ठीक है, ये होगा आपका VA। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, VA कितना है आपका 54 माइनस VB कितना है -90। ठीक है, तो 54 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 144 किलोमीटर पर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, द वेलोसिटी कम्स टू बी 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे आपको जो आंसर दे रखा है दैट इज मीटर पर सेकंड में दिया है। आप चाहो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, so speed is BAB equal to 144 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो स्पीड है वो बढ़ गई है, स्पीड जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसलिए जो ट्रेनें होती है जब वो क्रॉस करती है तो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप ट्रेन से जा रहे हैं और दूसरी एक ट्रेन आई और वो बहुत जल्दी क्रॉस कर गई। ठीक है, पैरेलल जा रही है तो बहुत काफी देर से क्रॉस करेगी, लेकिन अगर वो सामने से आ रही है तो इट विल क्रॉस वेरी अर्ली। Why? Because the velocity has increased. यहाँ पे velocity जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। The velocity has increased. Okay. Now second one we have to solve velocity of a ground with respect to B. Ground की velocity क्या होगी with respect to B? अच्छा, ground जो होता है वो rest में होता है, ground is at the rest. So हम ये मान के चलते हैं कि जो velocity of ground है that is 0. वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे पूछा है ये पोर्शन में velocity of ground with respect to B. So velocity of ground with respect to B is equal to 0. Sorry, पहले अपन इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं।
minus velocity of ground 0 minus 90. So it is 90 किलोमीटर पर आवर. तो ग्राउंड की वेलोसिटी जो होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर. अगर आप ट्रेन में चलते हुए ग्राउंड को देखें तो आप देखेंगे ग्राउंड तेजी से पीछे जा रहा है. ठीक है, तो जो ग्राउंड की स्पीड होगी वो वही स्पीड होगी जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है. ठीक है, जिस स्पीड के से ट्रेन चल रही है. अगर आप ट्रेन से ग्राउंड की तरफ देख रहे हो तो आपको ग्राउंड मूव करता हुआ दिखेगा. आपको ग्राउंड मूव करता हुआ दिख रहा है तो आपके लिए वेलोसिटी किसकी हो गई? ग्राउंड की. ओके, तो ग्राउंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. नाउ थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए. एक मंकी है जो ट्रेन ए के रूफ पे रन कर रहा है, मतलब ट्रेन ए की छत पे रन कर रहा है अगेंस्ट इस मोशन. मतलब उसका मोशन जो है अगेंस्ट इस मोशन. मतलब अगर ट्रेन नॉर्थ पे जा रही है तो किधर की तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ. और किस वेलोसिटी से जा रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है सी पोर्शन गिवन velocity of monkey with respect to the train A is 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितनी है? दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज मूविंग किधर की तरफ जा रहा है? वो टुवर्ड्स द साउथ. क्योंकि ट्रेन ए की तरफ जा रही है तो ये टुवर्ड्स साउथ जा रहा है. तो इट इज माइनस 18 किलोमीटर पर. ठीक है, माइनस साइन आएगा. अब आपको क्या निकालना है? मंकी की वेलोसिटी निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मंकी. तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला का वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए. ठीक है, ये हमको दिया हुआ था VMA. तो ये फॉर्मूला जाएगा VM वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. तो ये आपको दे रखा है माइनस 18. वेलोसिटी ऑफ मंकी आपको कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी ऑफ ए है आपकी, that is velocity of A is given as 54. That is 54. तो यहाँ पे आप आ जाएगा minus 18 plus 54. So this is velocity of monkey. तो यहाँ आ जाएगा आपका minus 18 54. 54 minus 18. तो कितना आ जाएगा आपका? 30. Okay. 14 minus 8 6 and remainder 30. So that will be equal to 36 kilometer per. Okay. So velocity of monkey is 36 kilometer per hour. Okay. So this is the answer also is given in your book. So this is known as the relative velocity. जिसे हम बोलते हैं relative velocity. ठीक है. I hope you understand. तो और क्वेश्चंस जो है वो आपकी बुक में पीछे भी दिए हुए हैं, रिफ्रेशर में भी है. आप उनको सॉल्व करिए and try to understand what the relative velocity is. Okay, so this chapter has finished. In the next class we will start the next chapter, motion in a plane. Okay, thank you.